तो चित्तौड़ के लिए कहते हैं गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। रानी में रानी पद्मावती, बाकी सब पदैया। गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, यानी गढ़, इस गढ़ से बड़ा कोई चित्तौड़गढ़ नहीं है। और सुंदरता में रानी पद्मिनी से मिलकर कोई कला नहीं, इसलिए कहते हैं चित्तौड़ के लिए देखने में खंडर, सुनने में स्टोरी, खाने में फेमस आता गाछ, आता कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल। हाँ। और यहाँ से ले जाने पर खड़ा किया गया था, ये खड़ा किया गया था। और इस मिरर से रानी का प्रतिबिंब दिखाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी रानी को पास में देख सकता, पीछे मुड़ता रानी का। मेरा नाम प्रताप सिंह सकता होता है। हाँ, फोन नंबर बताइए। 7728958828। आज चित्तौड़ आएंगे तो आपसे जरूर फोन करेंगे, ठीक है। चलिए आइए। कहाँ से आना हुआ सर अपना? हम कलकत्ता से हैं दादा, दिल्ली से। अच्छा चलो, हमारे बड़े भाई हैं, बस ये भी कलकत्ता से दिल्ली है। आप आइए। উদয়পুরে আমরা যেদিন পৌঁছেছিলাম সেদিনকে একদম সন্ধ্যায় পৌঁছেছিলাম, সেজন্য বেশি কিছু ঘুরতে পারিনি। ফতেসাগর লেকের পাশে একটু খাওয়া দাওয়া করে ঘোরাঘুরি করেছিলাম, আর খাম্বাগানিতে ডিনার করেছিলাম বেস্ট রেস্টুরেন্টে। আর প্রথম দিন যেটা ঘুরেছিলাম, নেক্সট ডে আর কি, প্রথম দিন যে ট্যুর প্ল্যান করেছি সেটার আলাদা ভিডিও করে নিয়েছি। আর তারপর মানে সেকেন্ড ডে আমরা যে প্ল্যান করেছিলাম সেটা হচ্ছে চিতোর। উদয়পুর থেকে আমরা চলে গেছিলাম চিতোর, একটা গাড়ি ভাড়া করে নিয়েছিলাম, আর তারপর আমরা চিতোর গিয়েছিলাম। তো আমরা প্রথম দিন যখন উদয়পুর পুরো ভিজিট করি তখন একটা ফ্যামিলির সাথে আমাদের আলাপ হয়, যারা মারওয়াড়ি ফ্যামিলি, আর তারা দিল্লিতে থাকেন। আর ভদ্রলোকের ক্যান্সার হয়েছিলেন, ওনারা চাইছিলেন কোনো একটা সাপোর্ট, যাতে ওনাদের সাথে গেলে খুব ভালো মতো ওনারাও চিতোরটা ঘুরতে পারেন। তো আমাদের সাথে কথা বলে ওনাদের ভালো লেগেছিল, তো আমাদের বলেছিল আমরা দুজনে একসাথে শেয়ার করে আমরা চিতোরটা বেড়াতে যাব। তো সারাদিন ওনাদের সাথে আমরা স্পেন্ড করেছি, ভীষণ ভালো লেগেছে। তো চিতোরের পুরোটা আমি ভিডিও এখানে তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। চিতোরের গাইডের নাম্বার প্রথমেই আমি দিয়ে দিয়েছি তোমাদের কাছে। গাইড এত ভালো করে বুঝিয়েছে, আর ওর ভয়েসটা এত সুন্দর ছিল, ওনার ভয়েস, যে আমাদের শুনতে ভীষণ ভালো লেগেছে, আর ভীষণ ফ্রেন্ডলি। আমরা উদয়পুর থেকে প্রথমে চলে গেলাম যে ভদ্রলোকেদের সাথে আমরা একসাথে করে শেয়ার করে গাড়ি নিয়েছি তাদের হোটেলে, এবং সেখান থেকে ওনাদের নিয়ে এবার আমরা চললাম চিতোরের পথে। উদয়পুর থেকে আমরা যে গাড়িটা ভাড়া করেছিলাম সারাদিনের জন্য, সেটা চিতোর পুরো ঘুরিয়ে ফোর্টের ভিতরেও আমাদের ঘুরিয়েছে। তো আমাদের 3500 টাকা নিয়েছিল। তো আমরা দুটো ফ্যামিলি ছিলাম, আমরা দুটো ফ্যামিলি অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে নিয়েছিলাম। এবার গাড়ি নিয়ে দেখো আমরা ফোর্টের মধ্যে যাচ্ছি, আর চিতোরগড় ফোর্টের ভেতরে ঢোকাটা মানে 7টা দরজা পার করতে হয়। চিতোরগড়ে প্রবেশ করার জন্য যে 7টা গেট আমাদের পার করতে হয়েছিল, তো সেই 7টা গেটের নাম হচ্ছে পদনপোল প্রথমটা, তারপরে হচ্ছে ভারানপোল, তারপরে হচ্ছে 3 নম্বর হচ্ছে হনুমান পোল, 4 নম্বর হচ্ছে গণেশ পোল, 5 নম্বর হচ্ছে জোরলা পোল, 6 নম্বর হচ্ছে লক্ষ্মণ পোল, আর 7 নম্বর হচ্ছে রাম পোল। আমরা এগিয়ে চললাম একটার পর একটা পোল মানে দরজা অতিক্রম করে। সামনে দিয়ে দেখতে থাকো তোমরা পুরো ভিডিওটা, তোমাদেরও ভালো লাগবে। এই অঞ্চলটায় অনেক আতা গাছ আছে। এখানে সীতাফল বলে, আতা গাছ আর কি, সীতাফল হচ্ছে আতাকে বলা হয়। আর এই আতার আঁশ দিয়ে খুব সুন্দর শাড়ি তৈরি করা হয়। আর এখানে জড়িবুটি যে চাষাবাদ হয়, সেই জড়িবুটি দিয়ে রেজাই মানে কম্বল এখানে বানানো হয়। সেই কম্বল গায়ে দিলে নাকি গায়ে ব্যথা, পেন যাদের আছে, আর্থাইটিসের প্রবলেম আছে, তাদের সেই ব্যথা কম হয়ে যায়।
দেখো আমরা মেন দুর্গর মধ্যে চলেছি, ভেতরে প্রবেশ করছি। রাজস্থানের লিভিং ফোর্টগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম। আর দেখো এই ফোর্ট শুরু হয়ে গেছে, তার ভেতরে জনবসতি রয়েছে। আর এখান থেকে আমরা শুরু করলাম, দেখো যাচ্ছি, এখানে জনবসতি রয়েছে, এখানকার মানুষেরা বাড়ি ঘর সবই তোমরা দেখতে পাবে। আমি পুরো ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি, যেরকম গ্রামের বাড়ি হয় আজকাল সেরকমই, আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খুবই। তো আমরা এগিয়ে চললাম মেন ফোর্টের দিকে। দেখো এখানে আমরা রানী পদ্মিনীর কথা জানতে পারবো। পদ্মিনী বলতে যাকে বলা হচ্ছে, আমরা জানি যাকে, পদ্মাবতী। পদ্মাবতী সিনেমা হওয়ার পর থেকে আমরা তার সম্বন্ধে আরও বেশি করে জানতে পেরেছি এবং তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাও বেড়ে গেছে এবং তার প্রতি জানার একটা আগ্রহ আমাদের রয়েছে। আর সেই আগ্রহ থেকেই কিন্তু আমাদের চিত্তোড়ে ভ্রমণ। আর তোমরাও কিন্তু এটা মিস করবে না, কারণ এখানকার গাইডের কাছ থেকে শুনতে পারবে এখানকার রানীদের বীরত্বের কথা এবং তারা যে জহর করত, কেন করত, তাদের মান সম্মান রক্ষা করার জন্য তারা কতটা মানে সাহসী ছিল, সেগুলোর পরিচয় পাওয়া যায়। তাই এইসব জায়গাগুলো এলে না, এখানকার গাইডদের কাছ থেকে যদি তুমি হিস্ট্রিটা জানো, তাহলে এমনি তোমার মনে হবে যেন তুমি সেই সময়ে পৌঁছে গেছো। আর মানে আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে, একটা দারুণ একটা ফিলিংস হচ্ছিল যে আমাদের ইন্ডিয়ান কালচারে এত রিচ আমরা, যে আমাদের মানুষজন, আমাদের সংস্কৃতি, এগুলো যেন আমাদের কাছে অনেক গর্বের বিষয়। সেটা এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, কারণ এই জায়গাটাকে রক্ষা করা যাচ্ছিল না তখন। এই আর একটা গেট, এটাকে জোড়লা পোল বলে। क्या बनाया था ना, हाँ ये 40 साल पहले आए थे तब। अच्छा 40 साल पहले। हाँ উপরে দেখতে পাচ্ছেন ওইখান থেকে। আর এই চলে এসছে লক্ষ্মণ পোল, লক্ষণের নামে, রাম লক্ষণের লক্ষণ, সেই নামে লক্ষ্মণ পোল। গার্ড হাউস। कितना साल लगे होंगे इतना बड़ा बनाने में? इसको এটা आउटर पार्सिंग्स, ওটা इनर पार्सिंग्स। इस फोर्ट को बनाने में काफी टाइम लग गया होगा, क्योंकि एक राजा के द्वारा नहीं बनाया अच्छा गया था। जैसे जैसे चेंज होते गए वैसे वैसे अपना अपना खुद हो गया। डेवलप। আর এই চলে আসলো ভগবান শ্রী রাম के नाम पे राम पोल, वन ऑफ द मेन एंट्रेंस। ये शायद छठा है ना? हाँ ये इसमें फैमिली भी है ना? হ্যাঁ 5000 की पॉपुलेशन है यहाँ पे। এখনো ভেতরে 5000 লোক আছে। फैमिली है হ্যাঁ हाँ, ফ্যামিলি, हाँ। গাঁও এটা একটা আছে। गांव टाइप जो सेना फंस गई थी ना लास्ट में, वो यही পুরো একটা গ্রাম আছে। এই একটা জায়গা যেখানে 1 লক্ষ লোক থাকতো একটা সময়। ও এরকম আগেও ছিল। হ্যাঁ এখানে 1 লক্ষ লোক ছিল। ও पॉपुलेशन 1 लाख था यहाँ का। इसके बाद ये घट के এলাকা কে একটা ইয়ে দিয়ে আটকে দিয়েছে। हाँ इट वाज अ फोर्ट। फोर्ट করে দিয়েছে। खेतीबाड़ी वाले लोग बाहर रहते थे, बाकी सब अंदर रहते थे। सोल्जर्स, बिजनेस कम्युनिटी सब अंदर रहते थे। दिस इज भवानी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, मराठा वंश कुलदेवी तुलजा भवानी। এখানে জেনারেল পপুলেশন। ये लोग पहले सेना में थे ना? हाँ এরাই আগে এখানকার फ्रंट से चाहिए। মানে চিত্তোড়ের যারা সৈন্য ছিল তারা এখানে ছিল, তারাই এরা। চলে এসেছি আমরা মেন गेटे। दिस इज द एंट्री गेट ना? यहीं से एंट्री है? यही आपके मित्र हैं? है मृग वन दुर्ग, मृग वन दुर्ग। और ये चले आपके कुंभा पहले से ही है। कुंभा पैलेस। स्टार्ट विद द पैलेसेस। यहाँ पे उतर जाइए आप। गढ़ों के गढ़ चित्तौड़गढ़, कैसे जाएंगे हम? बाकी सब यहाँ गढ़। से ऊपर
উদয়পুর বেড়াতে এলে চিতরগড় কিন্তু একটা প্ল্যান করবেই, কারণ এটা দর্শন না করলে কিন্তু কিছু একটা মিস হয়ে যাবে। চিতরগড় এত সুন্দর জায়গা। চিতরগড় ফোর্টে আমরা শুনতে পাবো গাইডের কাছ থেকে রানী পদ্মাবতীর গল্প, কর্ণাবতীর গল্প, আর এখানে 3টে যে জহর হয়েছিল সেই জহরের গল্প, আর তাছাড়া এখানকার সেনাদের বীরত্বের কাহিনী। তার জন্য দেখতে হবে পুরো ভিডিওটা। आप जो फोर्ट घूमना आए हो ना, ये एशिया लार्जेस्ट फोर्ट है जो 13 किलोमीटर सवा 700 एकड़ जमीन पर, जमीन लेवल से 580 फीट की ऊंचाई पे इस फोर्ट को देखने को मिलता है। इस फोर्ट को 5वीं शताब्दी में बनाया गया था चित्रांगद मौर्य, जो मौर्य डायनेस्टी के राजा थे चित्रांगद मौर्य ने इस किले को बनाया था। अच्छा। तो उसको नाम रखा था चित्रकूट, चित्रकूट के नाम से जाना जाता था। चित्रकूट जो है वही चित्तौड़गढ़, वो चित्तौड़गढ़। 8वीं शताब्दी में गुजरात के पास में एक छोटा सा गांव है ईडर, ईडर के किंग्स बप्पा रावल, जो काल भोज के नाम से जाना गया, बप्पा रावल ने इसको 8वीं शताब्दी में इसका नाम चेंज कर दिया गया। जब से अपने कैप्चर में क्या चित्रकूट से चित्तौड़गढ़ कर दिया गया, जब से मेवाड़ की राजधानी कहलाई। 13 किलोमीटर बसा हुआ अरावली की पहाड़ी से जमीन से 580 फीट की ऊंचाई पर अरावली की पहाड़ी बना हुआ एशिया बिगेस्ट फोर्ट कहलाता है। इसके अलावा इस किले पर छोटे बड़े मिलाकर 113 मंदिर है, 8 महल है, 84 पानी के तालाब है। उस समय 50,000 पॉपुलेशन फोर्ट के ऊपर रहता था, अभी भी 5,000 लोग इस फोर्ट पे रहते हैं। एक लिविंग फोर्ट है। अभी 7 गेट जो अपने इस किले की दीवार से ऊपर चढ़ाई करी है, 7 गेट इस किले के पीछे के दरवाजे हैं जो मुसीबत के समय खोले जाते थे। इसका मेन गेट सूरजपोल दरवाजा है, जिधर सूर्य उदय होता है उधर किले का फ्रंट साइड रखा जाता था। तो फ्रंट साइड ईस्ट साइड की तरफ है, वहीं बैटल फील्ड बना हुआ, युद्ध का मैदान। जब राजा महाराजा के बीच में युद्ध लड़ा गया था तो युद्ध वहीं लड़े गए थे। फिलहाल उसी के अंदर हब्स होता, जड़ी बूटियाँ। तेल बॉडी पे गहरे घाव लगते थे, कट लगते थे, हाथ कट जाते थे, पाँव कट जाते थे। तो राजा महाराजा का इलाज जो होता था, हब्स जो होता था, हब से किया जाता था। 22 प्रकार की हब्स जड़ी बूटियाँ पे उगाई जाती है। 22 प्रकार की हब्स उगाई जाती है गाँव में, गाँव अंदर, गाँव के बाहर, गाँव के बाहर, मतलब जहाँ युद्ध होता था उसी टाइम से राजा महाराजा के टाइम से अभी भी वो उगाई जाती है। इसका पूरा देखभाल करता है ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग होता है ना, जिसने महाराणा प्रताप का साथ दिया था, उन्हीं का परिवार लोग अभी भी वो खेती करता है। उसी के अंदर विडोज होती है, हैंडीकैम बच्चे होते हैं, अनाथ लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको राजा साहब ने रोजगार दिया गया। चित्तौड़गढ़ अपने हाथ की कला के लिए फेमस है। जो हाथों से चीजें बनाई जाती है ना, वो काफी फेमस है चित्तौड़गढ़ की। जो राजा महाराजा का टाइम से अभी भी आदिवासी लोग उन हाथों की कला को बनाते हैं, जो अभी भी जीवित कला है वो, जो सबसे लास्ट में अपन उन चीजों को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्ट के ऊपर अपना अधिकांश टाइम पर 27 बार हमले हुए हैं, जिसमें 24 बार राजपूतों ने विक्ट्री करा और 3 बार हारे। जब 3 बार राजपूत लोग हारे तो राजपूत क्वींस ने अपने आप को जिंदा जलाया, जिसको जौहर का नाम दिया गया। तो 3 जौहर बहुत फेमस माने गए। पहला जौहर क्या था, यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल क्वीन पद्मिनी, जो हिंदुस्तान में उसका नाम पद्मावत के नाम से, पद्मिनी के नाम से जाना आता है। कहते हैं इतना ब्यूटीफुल क्वीन होता था कि जब पानी पीते था ना तो अपने गले से नजर आता था, पास हवा छू कर निकलता था, खुशबू चेंज होता था। तो दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ किले पर आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो रानी पद्मिनी ने अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए 16,000 औरतों के साथ में पहला जौहर किया, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जौहर था। 16,000 औरतों को, मैंने पूरा गांव का चाइल्ड जो भी इंक्लूड थे, जो लड़ने में असमर्थ थे, उन सब ने जौहर किया। राजपूतों ने शाखा करी, उस युद्ध में मारे गए युद्ध में, और इधर राजपूत क्वीन से अपने आप को जौहर में किया गया। सन 1303 में पहला जौहर हुआ। 2 तरह के जौहर बहुत फेमस माने गए। चित्तौड़गढ़ में अग्नि जौहर हुआ, जो आग में कूदकर जौहर किया जाता है। एक अलवर फोर्ट के अंदर जल जौहर हुआ। जल जौहर के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था, उस समय रानियों ने जल में कूदकर अपने आप को जल जौहर किया था। तो 2 तरह के जौहर बहुत फेमस माने जाते हैं। ये जो टेम्पल दिख रहा है, जो पैलेस दिख रहा है, इसको 8वीं शताब्दी में बनाया गया था बप्पा रावल के द्वारा। लेकिन बप्पा रावल के द्वारा 8वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन सन 1303 में जब रानी पद्मिनी हासिल नहीं हुई अलाउद्दीन खिलजी को, तो ये महल को डैमेज कर दिया गया। तो वापस 14th सेंचुरी महाराणा कुंभा ने इसको रिपेयर कराया, तो इसको कुंभा पैलेस के नाम से जाना आता है। अभी आपने इंटर करी ना, ये हॉर्सेस का रास्ता है, यहाँ से स्टेबल्स से हॉर्सेस आया करते थे। 7, हाँ, ये सामने पूरा दिख रहा अस्तबल है, या 7 पिलर दिखे ना, यहाँ 7 घोड़े बनते थे, इंसानों के पास अंडरस्टैंड थे। ऊपर साइड में देखिए, जब राजा महाराजा यहाँ पर कोई भी डांसिंग सीन होता था, प्रोग्राम्स होता था, ये एंटरटेनमेंट होता था, तो राजा महाराजा उसमें ऊपर कर रहते थे और यहाँ से उसको विजिट किया करते थे। पास में दिख रहा है विंडोज दिख रहा है, इसमें आपकी क्वींस जो होती है क्वींस खड़ा कराते हैं। सामने दिख रहा है सूरज गोखड़ा,
बरसात के समय कभी सूरज निकल नहीं करता था। राजपूत क्वीन जब तक सूरज की पूजा नहीं करती थी, जब तक जल ग्रहण नहीं करती थी, तो यहाँ पर 14 किलो का सोने का सूरज लगा था। उसी का रानी पद्मिनी पूजा करती थी, जो आपको उदयपुर के सिटी प्लस में देखने को मिलता है। 1575 में हर जो रेगुलर चीजें थी सबको उदयपुर सिटी प्लस में कर दी गई, तो वो सूरज यही लगा हुआ था। आइए, कोई भी रॉयल गेस्ट, कोई भी वीआईपीज, ये राजा महाराजा कोई भी ब्रेवरी काम करता था तो यहाँ पर बीच में खड़ा करके राजपूत क्वींस उनका विजय तिलक करती थी, दीपदान जलाए जाते थे। ये छोटे छोटे जो छेद दिख रहे हैं ना, इनमें दीपक लगाया जाता था। अच्छी तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, बजाया करते थे और राजाओं का इसलिए किया जाता था। आइए, सेकंड हमला क्या गुजरात के अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। उस समय राजमाता कर्णावती किले की गद्दी पे थी। राणा उदय सिंह की मदर महाराणा प्रताप की दादी। कर्णावती की रक्षा करने के लिए कोई मर्द नहीं था। राजपूत राणा सांगा खांडवा युद्ध में, उसके बाद घायल होने के बाद में राणा सांगा का मृत्यु हो जाता है, तो गद्दी पे बैठती राजमाता कर्णावती। तो उसी का फायदा उठाता है गुजरात के अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। वो चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर देता है। उस समय इस किले की रक्षा करने के लिए कोई नहीं होता है। उदय सिंह की उम्र काफी छोटी होती, तो महाराणा कर्णावती अपनी रक्षा करने के लिए हुमायूं को राखी भेजती है, लेकिन हुमायूं टाइम पर आ नहीं सकता है। तो सेकंड जोर कर्णावती के द्वारा 13,000 औरतों के साथ में किया जाता है। और लास्ट जोर होता है 1565 अकबर के समय। उस समय यहाँ के राजा उदय सिंह होते हैं, महाराणा प्रताप के पिता। महाराणा प्रताप की उम्र काफी छोटी होती है, तो यहाँ के कमांडोज लोग जो होते हैं निर्णय लेते हैं रॉयल फैमिली को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि रॉयल फैमिली खत्म हो गई तो मेवाड़ का वंश खत्म हो जाएगा। तो महाराणा प्रताप के साथ में उनके पिता उदय सिंह उनको लेकर यहाँ से कुंभलगढ़ की तरफ कूच करते हैं और चित्तौड़ किले पर अकबर का हमला होता है। उस समय यहाँ के जो सूरवीर किंग्स होते हैं, जयमल फतेह, साईदास राव, चुंडा राव, बाघ सिंह, मेहराम खां, शेरशाह सूरी चित्तौड़गढ़ किले की रक्षा करते हैं। कहते हैं 6,000 राजपूत लाखों की सेना का सामना करते हैं। अकबर को चित्तौड़गढ़ जीतने में 6 महीनों का टाइम लगता है, मात्र 6,000 राजपूतों के बीच में। उस समय सेकंड जोर, थर्ड जोर होता है यहाँ की राजकुमारियां, यहाँ की दासियों के द्वारा, 6,000 राजपूत क्वींस के द्वारा जोहर होता है। इस तरह से 3 बार चित्तौड़गढ़ किले को डैमेज किया गया और 3 बार अटैक किया गया। लेकिन राजपूत लोग यहाँ कर अजय, चित्तौड़गढ़ एक अजय किला कहलाता है। यहाँ के राजपूतों ने कभी किसी के सामने सेक्रीफाइस नहीं किया। जैसे जयपुर के राजा महाराजाओं ने अपनी बहन बेटियों को मुगलों का हवाला कर दिया, लेकिन यहाँ के राजपूतों ने कभी किसी के सामने सेक्रीफाइस नहीं किया। इसलिए मेवाड़ के लिए कहते हैं खून सस्ता और पानी महंगा है, ब्लड का कोई कीमत नहीं है। आपने पन्नादाय का स्टोरी सुना, दात्री पन्नादाय अपने का पुत्र का बलिदान देके उदय सिंह की जान बचाती, और उस समय ये त्याग नहीं देती। इस मेवाड़ को महाराणा प्रताप नहीं मिलते हैं, और उदय सिंह का बचपन में रहता था, महाराणा प्रताप नहीं होते हैं। तो एक पन्नादाय अपने पुत्र का बलिदान दे देती राणा की रक्षा करने के लिए। तो चित्तौड़ के लिए कहते हैं गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। रानी में रानी पद्मावती, बाकी सब पदैया। गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, यानी गढ़, इस गढ़ से बड़ा कोई चित्तौड़गढ़ नहीं है। और सुंदरता में रानी पद्मिनी से मिलकर कोई कला नहीं, इसलिए कहते हैं चित्तौड़गढ़ के लिए देखने में खंडर, सुनने में स्टोरी, खाने में फेमस आता गाछ, आता कस्टर्ड एप्पल, और यहाँ से ले जाने में उसका आदिवासी लोगों की हाथ की कला। हाथ की कला में 3 चीज बनाते हैं आदिवासी लोग, जो चित्तौड़गढ़ का काफी फेमस होता है। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ किले पर सीताफल काफी मात्रा में मिलते हैं, कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल को सर्दी में खाने का यूज लेता है, गर्मी में सूख कर काला पड़ता है। आदिवासी भील लोग उसकी पेड़ की छाल को उतार कर चूल्हे में गलाते हैं, और चूल्हे में गलाने के बाद चरखे की सहायता से एक धागा बनाते हैं, और उसी धागे से एक साड़ी बनता है, सीताफल का साड़ी। तो मैंने आज पहली बार ये आपको दिखाएंगे कस्टर्ड एप्पल साड़ीज। अच्छा, उस साड़ीज की सबसे बड़ी खासियत होती है उसमें रानी पद्मिनी का मैरिज का डिजाइन, अलग अलग कलाकृति, सांस्कृतिक कलाकृति, और उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है उसको फर्स्ट बार फिटकरी होता है एलम, जो आफ्टर सेव यूज करता है, एलम स्टोन। उसके पानी से धोता है ना, तो उसमें गुलाब का महक आता है साड़ी के अंदर। जब तक कपड़ा रहेगा तब तक गुलाब का महक आएगा, क्योंकि रानी पद्मिनी गुलाब के फूल का काफी शौक था ना, तो गुलाब का साड़ी बनता है यहाँ पर। अच्छा, जो यहाँ पर काफी ट्रेंड में है, काफी फेमस है यहाँ का। चलिए, ये बोले आप दिल्ली आएंगे तो हमारे पास रुकिएगा, और कलकत्ता आने से हमारा घर आना। आपको तो उनका घर है। नहीं, इसीलिए बोला हमारा घर आना। अनाज स्टॉक भंडार। मुसीबत के समय जब किले के ऊपर आक्रमण होता था तो किले को चारों तरफ से घेर लिया जाता था। उस समय कुछ महीनों के लिए अंदर ही कुछ व्यवस्था की जाती थी, जिससे कि मुगलों से या एनिमीज से लड़ने की ताकत मिल सके। तो यहाँ पर ये पूरा जो है यहाँ पर 6 मंथ के लिए स्टोरेज किया जाता था, जो उस समय काम आता था। तो इसको अनाज स्टॉक भंडार कहते हैं। ये अनाज स्टॉक, पूरा अनाज स्टॉक भंडार ही है जो पूरा दिख रहा है आपको। ये पूरा फ्रिज, ये पूरा ग्रीनरी মানে এখনকার দিনে ফ্রিজ এটা। इधर आइए, इधर चलेंगे। ये वेजिटेबल्स जो भी होती थी, वेजिटेबल्स होती थी या कोई भी कुछ भी जो जिससे राजपूत लोग चीज पूछना था, मांस का प्रयोग करते थे।
वो सब कुछ यही रिजर्व किया जाता था। यस सही इसके ठंडा काफी ठंडा ना, तो उसको काफी जैसे अपन इतना सा दीवार बनाते हैं, तो उस समय राजपूत इतना बड़ा चौड़ा और कुछ साइंटिफिक कुछ वजह थे हवा को ठंडा रह सके। उसके अलावा पत्थर से जब हवा टकराती थी ना, तो ठंडा के रूप में अपना जाती थी। तो इसका मेन रीजन था। इसके अलावा जो कापूस होता है, बोरी होता है ना, बोरी समझते हैं, अनाज आता है, उसके ऊपर छींटे डालकर गर्म रखा जाता था, ठंडा रखा जाता था एयर कंडीशन के लिए। आपने आता बोला ना, तो हम लोग बंगला में आता ही बोलते हैं। आप आता कहाँ से तो बोलते हैं, इसलिए बोला। दिल्ली में बोलते हैं शरीफा। कस्टर्ड है। कास्टर्ड एप्पल बोलते हैं। और आप लोग यहाँ पे सीताफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके ईदी का आंसू? ईदी এদিকে का আসুন। তোমাকে বলেছে এদিকে আসুন। আসছি। ये है क्वीन मीरा पैलेस कौन सा वाला? सामने। आपने मीरा का नाम तो सुना होगा। मीरा भाई। कृष्ण भक्त मीरा। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मारो तो गिरधर गोपाल। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। उनका शादी यहाँ पर राणा भोजराज से होता है। राणा सांगा होते हैं ना, राणा सांगा। आपने राणा सांगा के नाम तो सुना होगा, जिनके बॉडी पर 80 घाव थे। एक आंख नहीं था, एक हाथ नहीं था, जिसने खांडवा का युद्ध लड़ा था बाबर से। महाराणा सांगा के 3 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र भोजराज, जिससे मीराबाई का शादी हुआ, संबंध हुआ। सेकंड पुत्र थे विक्रमादित्य, और सबसे छोटे पुत्र कुंवर उदय सिंह, जिसने उदयपुर सिटी बसाया। उदय सिंह के 3 पुत्र हुए। महाराणा प्रताप सबसे बड़ा पुत्र, सेकंड पुत्र जगमाल, और सबसे छोटे पुत्र थे जगमाल, सबसे सेकंड थे शक्ति सिंह। ये 3 पुत्र थे महाराणा प्रताप के, 3 भाई थे। और महाराणा प्रताप के भी पुत्र हुए महाराणा अमर सिंह, जिसने इस किले को जहांगीर से जीता था। वापस जीत लिया। 1565 के अंदर जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले को लिया, तो वापस इस किले को महाराणा प्रताप के पुत्र जहांगीर से इस किले को लिया गया। महाराणा प्रताप ने इसी किले के लिए प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं अकबर से मेरा राज्य वापस नहीं लेता हूँ, जब तक अपनी लग्जरियस लाइफ को छोड़ दूंगा, सोने चांदी की थाली में खाना नहीं खाऊंगा, नरम बिस्तरों पर नहीं सोऊंगा, और महलों में अपना जीवन यापन नहीं करूंगा। तो महाराणा प्रताप ने अपना जीवन का अधिकांश टाइम 27 साल तक वो जंगलों में रहे। महाराणा प्रताप ने जितने भी अकबर से जितने भी किले थे, महाराणा प्रताप ने वापस जीत लिए। इसलिए महाराणा प्रताप का नाम काफी अमर रहा। एक राणा होते हुए कभी हरी घास की रोटी भी खाई, घास की रोटी भी खाया राणा ने घास का रोटी भी खाया इस मेवाड़ की रक्षा करने के लिए। वो सूरवीर किंग्स व महाराणा प्रताप ने जीवन में कभी युद्ध नहीं हारे। रणनीति इतना था, उनके दादा परदादाओं से काफी बहादुर थे वो, जिसने अकबर से कुंभलगढ़ फोर्ट जीता। आसपास के कई फोर्ट जो अकबर ने उनके पिता उदय सिंह के समय ले लिए थे, वो वापस महाराणा प्रताप ने जीते। ये किला चित्तौड़गढ़ किला महाराणा प्रताप जीत नहीं पाते। कहते हैं मात्र 57 ईयर्स में महाराणा प्रताप का डेथ हो जाता है। अच्छा। उनका लास्ट सपना होता है कि चित्तौड़गढ़ को जीतना। तो उनका पुत्र महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह जहांगीर से इस किले को लेता है। तो महाराणा प्रताप के जो अनुयायी थे आदिवासी लोग, महाराणा प्रताप आदिवासी के बहुत प्रेमी थे। जो हल्दी घाटी की लड़ाया गया था 1575 के अंदर, उसमें सबसे बड़े भाग्यता थी भील समुदाय की, क्योंकि महाराणा प्रताप का साथ सबने छोड़ दिया था। अकबर के आक्रमण इतने तेज थे, जितने राजपूत लोग थे जिसके अंदर अधीन में आ गए थे, उनके अपना साम्राज्य अकबर को सौंप दिए गए थे। लेकिन मारवाड़ महाराणा प्रताप ही थे मेवाड़ के राजा, जिसने अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। तो महाराणा प्रताप के पास सेना नहीं थी, तो उन्हें भीलों की टेवलों की इकट्ठा किया और भील लोगों के साथ में युद्ध लड़ा गया। तो महाराणा प्रताप ने काफी संघर्षपूर्ण जीवन जिया है चित्तौड़गढ़ के लिए। तो अभी भी यहाँ के आदिवासी लोगों को बहुत ज्यादा प्रज्ञा दी जाती है। जो बैक साइड में रहते हैं उन्हीं के अंदर हैंडीकैप बच्चे होता अनाथ लोगों को तो अडॉप्ट किया गया, यहाँ के राजा साहब की तरफ से अडॉप्ट किया गया। उनका पूरा देख रेख राजा साहब ही करते हैं अभी भी। मतलब और ये मीराबाई टेम्पल, मतलब मीराबाई इधर आए थे क्या? मीराबाई का अभी स्टोरी आपको आगे बताऊंगा सब। ना ये टेम्पल में उन्होंने आए थे सबको, ये सब पैलेस है उनका, टेम्पल आगे। सेकंड पॉइंट है ना अपना, हाँ। उसके अंदर टेम्पल है। हाँ, जब मीरा को विष दिया था जहर। अब स्टॉप कर दो उसको। क्या आइए सर, ये वॉशरूम एक तुम वीडियो करो।
আচ্ছা তুমি যাও। এটা ওয়াশরুম, দেখো আসো ভেতরটা দেখো, নিচটা দেখো। টয়লেট তো তোমরা দেখলে, তার সাথে ড্রেসিং রুম কি সুন্দর। আর যেখানে তার পাশেই হচ্ছে রাজা রানী কোথায় থাকতেন, মহারানা কোথায় থাকতেন এবং তার রানী, সেগুলোও রয়েছে। মানে এখনো কত সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে, ভেঙে গেছে অনেক অংশ তাও। এটা চেঞ্জিং রুম এটা বাথরুম। और ये भी बाथरूम। रहा करता था उस समय। इसे 1000 साल पुराना स्ट्रक्चर है। आधा स्ट्रक्चर तो तोड़ दिया ना। एक 1000 বছর। এখানে রাজা রানী থাকতো। अंडरग्राउंड रास्तों से जाना पड़ता था। अच्छा, जब रानियां जौहर करने के लिए गई थी तो इसी रास्ते से जौहर करने के लिए गई थी। या वो ना जो पिक्चर में दिखाया कि नीचे चली जा रही है ऐसे जैसे नाले धोने के लिए गई थी ना, इसी रास्ते से नाले धोने के लिए जाती थी। एक अग्नि जल का टैंक बना हुआ, गोमुखी टैंक, गाय के मुख से नेचुरल पानी निकलता है। उस पानी का कोई सोर्स पता नहीं कैसा कहाँ से आ रहा है। गोमुखी टैंक है, वहाँ पर नहाने के लिए इधर से रास्ते से जाती थी। नहा धोकर पूजा करने के बाद वापस पैलेस के अंदर एंट्री आ रहे थे। तो ये इस तरह से बना हुआ टनल बना हुआ है। ये कहते हैं पतंजलि सालाना 9 लाख रुपए चांदी और सोने की मुद्रा इकट्ठी होती थी यहाँ पर। यहाँ का रिजर्व बैंक समझ सकते हैं आप उस समय का। ये रिजर्व है। यस, रिजर्व बैंक। तो किला का सबसे पीछे है ना ये। पीछे का ये बैक साइड की तरफ है। ये लास्ट बड़ी पोल है, বড়ি পোল। ये लास्ट गेट है। বড়ি পোল দিয়ে আমরা এন্ট্রি নিচ্ছি। এটা লাস্ট গেট, মেন প্যালেসে ঢোকা। এর আগে নওলাখা ভবন টবন দেখিয়ে দিয়েছে উমা। আমাদেরকে বললেন বড়ি পোল দিয়ে প্রচুর লোক টুরিস্ট। আমরা মৃগ ভবন চিত্তৌড়গড় ছড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। এটা ধরো আমি ওঠো। এটা কুম্বাস্বামী টেম্পল। উমা উঠতে উঠতে দাঁড়িয়ে পড়েছে, কারণ উমার মোবাইল আমার হাতে, আর দিচ্ছি না আমি। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি নানা করে কেড়ে নিয়ে। ये देखिए, ये मंदिर आपको बड़ा मंदिर देखने को मिलता है। ये 8वीं शताब्दी के अंदर इसको बनाया गया था बप्पा रावल ने, जिसने विष्णु का 8वां अवतार वरा का मूर्ति लगाया गया था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दिया गया। हिंदू संस्कृति में टूटी मूर्ति को पूजा नहीं जाता है। तो 14th सेंचुरी महाराणा कुंभा ने इसको रिपेयर कराकर इसमें राधा कृष्ण बलराम का मूर्ति स्थापित किया गया। इसकी बनावट बैक साइड से उड़ीसा का जगन्नाथपुरी और आगे से सोमनाथ गुजरात की तरह बना हुआ। ये विष्णु का टेम्पल, गरुड़ का स्टेचू है, क्योंकि पहले विष्णु टेम्पल था तो उसको हटाया नहीं गया। छोटा मंदिर दिख रहा है, मीराबाई का टेम्पल है। आपने मीराबाई के बारे में सुना होगा, कृष्ण भक्त मीरा। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। सन 1503 में मीरा का जन्म हुआ और मात्र 17 साल की उम्र में मीरा का शादी यहाँ के राणा भोजराज से कराया गया। राणा सांगा के सबसे बड़ा पुत्र भोजराज, लेकिन मीरा का भी भोजराज को पति स्वीकार नहीं करा, क्योंकि मन ही मन में कृष्ण को अपना स्वीकार किया। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। उन्हीं का शादी जब यहाँ के राणा भोजराज से कराया गया तो मीरा ने भोजराज को पति नहीं माना। तो शादी कुछ महीनों बाद ही मीरा के पति भोजराज का अलग काल मृत्यु हो जाता है। तो मीरा पहले से इसको छोड़कर इसी मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन करती है, नाच गान करती है, साधु संतों में समय व्यतीत करती है। लेकिन एक राजपूती लेडीज होकर भजन कीर्तन करे, नाच गान करे, साधु संतों में बैठे, राजपूत लोगों को शोभा नहीं देता। लेडीज पहले पर्दा में रहती थी। तो मीरा के देवर विक्रमादित्य को पसंद नहीं है कि मीरा इस तरह साधु संतों में बैठे। मीरा को समझाया गया कि भाभी माँ ऐसा कोई कार्य मत करो जो राजपूतों की आन बान शान को ठेस पहुंचे। लेकिन मीरा मानी नहीं। तो मीरा को मारने का प्लान बनाया गया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी।
मीरा को मारने के लिए इसी मंदिर में मीरा के देवर विक्रमादित्य के द्वारा खीर के प्याला में विष दिया गया, जहर दिया गया। जब जहर मीरा ने ग्रहण किया तो वो अमृत में चेंज हो गया। फूलों की टोकरी में सांप भेजा गया जो माला बनकर मीरा के गले में गिरा। मीरा पर जब ज्यादा अत्याचार होने लगे तो मीरा यहाँ से चले गई। यहाँ से काशी, काशी से वृंदावन, वृंदावन से द्वारिका। द्वारिका के मंदिर में जाते हुए मीरा को सब देखते हैं, लेकिन उस मंदिर से वापस आते हुए नहीं देखते हैं। कहते अपने आप को उसी मंदिर में अंतलीन कर लेती, समा कर लेती है। तो मीरा मरी नहीं, मीरा अमर है। तो मीरा की जो घटनाएं घटी है वो यही घटी है। मीरा को विष दिया, अब इसमें चैन हुआ, सांप भेजा, माला बना। ये मीरा के गुरु संत रविदास का चरण पादुका है जो मीरा को भक्ति का ज्ञान देते हैं। तो मीरा वीर शिरोमणि, वीर शिरोमणि संत रविदास का चरण पादुका बनाए हुए हैं। मीरा को भक्ति ज्ञान काशी के अंदर, मीरा मथुरा के अंदर मीरा का मुलाकात इनसे हुआ था, मथुरा के अंदर। तो मीरा यही उसको भक्ति का ज्ञान मिला था। मीरा को ये सूत काटने का काम करते थे। सूत होता ना, सूत काटते थे, चमार जाति से बिलोंग करते थे। और उस समय शेड्यूल कास्ट लोगों को अलाउड नहीं होता मंदिर में, जनरल लोग की अलाउड थे पहले मंदिरों में। तो इसी तरह से मीरा को यही जहर दिया गया, न देख के आइए। পুরো মন্দিরটা পরপর দেখে নাও। দেখো সীতাফলের গাছ, মানে আতা গাছ। এখানে মেন বৃক্ষ হচ্ছে কিন্তু আতা গাছ। চারিদিকে দেখবে যেখানেই সবুজ সেখানেই আতা গাছ। এই মীরা মন্দিরের এখানে অনেক হনুমান ছিল, আর তাদের আমরা পেয়ারা কিনে দিলাম। আর কি আনন্দ করে ওরা পেয়ারা খাচ্ছে। এটি হলো বিজয় স্তম্ভ। এবার গাইডের কাছ থেকে এই বিজয় স্তম্ভ সম্বন্ধেই আমরা জানব। 1458 10 साल तो बनाने लगे और 90 लाख रुपए खर्चा आया। गुजरात के राजा अहमद शाह और मालवा मध्य प्रदेश के राजा महमूद खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले पर एक साथ आक्रमण किया। चारों तरफ से आक्रमण किए गए तो महाराणा कुंभा ने दोनों सुल्तानों को एक साथ युद्ध में शिकस्त दी। गुजरात और मालवा को जीतने को बड़ी उपलक्ष्य में इस टावर को बनाया गया, इसलिए नाम दिया गया विजय स्तंभ। 1448 में इसका कार्य शुरू हुआ, 1458 में बन के तैयार हुआ। 10 साल तो बनाने लगे, उस समय 90 लाख रुपए खर्च हुए इसको बनाने में। इसकी हाइट है जमीन से 122 फीट की ऊंचाई पे है। ऊपर से चौड़े हैं, फिर सकड़े हैं, फिर चौड़ा है। ऊपर जाने के लिए 157 सीढ़ियां है। कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। अच्छा, कुतुब मीनार से भी ऊंचा। राजस्थान का शान और मेवाड़ का गौरव कहलाता है। अभी चढ़ने देते नहीं, बंद है अभी। राजस्थान के जो पुलिस के बैच है ना प्रतिचिन्ह, इसमें इसी के प्रतिचिन्ह आपको देखने को मिलते हैं। जो कुंभा के नाम जलाता है, इसमें रामायण, महाभारत, गीता के पवित्र सार बसाए गए। राजस्थान का शान मेवाड़ का गौरव कहलाता है। आइए, ये उत्तरी जोहर द्वार है। जब रानियां जोहर करने के लिए आती थी ना, इसी रास्ते से जोहर करने के लिए आती थी। ये जाली से घिरा हुआ इलाका जोहर का स्थान है। पहले गार्डन में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी पहले 50 फीट गिरा कुआं था। ये पीपल का पेड़ दिख रहा है, हाँ। इसके नीचे डीप खड्डा था। अच्छा, 50 फीट गिरा डीप खड्डा था। रानी यही जोहर करती थी। आइए पास चलेंगे इसके। आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन प्रतिमा में पहली बार विजिट करोगे शिव को।
बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर, ऐसा मूर्ति पूरे हिंदुस्तान में आपको देखने को नहीं मिलता। तो इधर से जाएंगे आपको एक पानी का ब्यूटीफुल लेक दिखा, गौमुखी टैंक। हाँ, वो स्विमिंग पूल है। देखो कितना अच्छा पूरा शहर दिख रहा है चित्तौड़। थोड़ा सा पीछे हटके उमा, तुम ज्यादा आगे बढ़ रही हो। हाँ, थोड़ा पीछे हो जाओ उमा। कहाँ से आता है पता नहीं है। नीचे नदी है ना, वहीं से पानी। साइंस तो है, बिना साइंस का तो कुछ होगा। आपकी बेटियां मांगी। महल से यहाँ तक 2.5 किलोमीटर का रास्ता जमीन के अंदर टनल थी। हाँ, तो वो टनल तो गवर्नमेंट ने बंद कर। वो टनल पहले वो जो पानी के पिलर है ना, वहाँ तो अभी क्या है, कार्तिक महीना चल रहा है, तो लोकल पब्लिक जो बच्चे उपवास वगैरह करते हैं तो स्कूल में स्नान करने के लिए आते हैं, कार्तिक वाली। अच्छा, कार्तिक वाले ना, कार्तिक स्नान करते हैं। हाँ, कार्तिक। जो दीवार में आओ आओ, खा लो खा लो, अच्छे से खाओ। আমরা এই হনুমানদের পেয়ারা কিনে কিনে দিয়েছি আর ওরা খুব মজা করে খাচ্ছিল, এত ভালো লাগছিল ওদের দেখতে, তাই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। सबको दीजिए, एकदम पिकनिक हो जाए। आज अमरूद का पिकनिक। ये ऊपर से और आ रहे हैं। দেখা দে তো আমাকে। ये है पत्नी पैलेस। रानी पत्नी 4 मंथ के लिए यहाँ पर मेन पैलेस अपना कुंभा पैलेस घूमा ना। हाँ, वो मेन पैलेस कुंभा पैलेस है। पहले जो देखा। ये गर्मियों के समय रानी पत्नी यहाँ पर आया करती थी। गार्डन बना हुआ, रोज गार्डन। रानी पत्नी को गुलाब के फूलों का भी शौक था, तो उसकी मेमोरियल्स के लिए डेकोरेट किए गए। ये गुलाब के पौधे अभी कट कर दिए गए। अभी सर्दी आएगा ना तो अच्छे गुलाब फूलेंगे। मैंने बताया रानी को गुलाब के फूलों का भी शौक था। ये एयर कंडीशन पैलेस बना हुआ पानी के बीच में। फिर एयर कंडीशन ही होते थे। गर्मियों के समय रानी पत्नी 4 मंथ के लिए अपना समय व्यतीत करने के लिए आती थी, 4 महीने। हाँ, सुंदर प्रोग्राम है। ये क्या अस्तबल था, लेकिन गार्ड्स को शायद वो गार्ड है अभी। ये पैलेस बना पत्नी पैलेस। कहते थे अलाउद्दीन खिलजी को रानी का चेहरा दिखाया गया था ना, तो क्या सीढ़ी पर रानी पत्नी को बैठाया गया था और इस यहाँ से रानी का चेहरा दिखाया गया था। ये कांच तोड़ दिए गए, तोड़ दिए गए। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया गया था। इधर अलाउद्दीन खिलजी को इस तरह से खड़ा किया गया था और इस मिरर से रानी का प्रतिबिंब दिखाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी उस रानी को पास में देख सकता, पीछे मुड़ता रानी नजर नहीं आना। यानी ये जो स्टेप्स है, सीढ़ियां, जो सीढ़ियां बनी पानी के बीच में, ये सीढ़ियां कांच में दिखती है और पीछे वहां से मुड़ते तो डायरेक्ट नजर नहीं आती है।
ये रानी डायरेक्ट नजर नहीं आती थी, निकलती थी ना, उदासी फ्लावर्स फेंक के स्वागत क्या करती थी उनका। এগুলো কোয়ার্টার সব রানীদের। ये वॉशरूम बना हुआ उस समय का, दासियों का। और एंटरटेनमेंट रूम्स, या कभी डांसिंग सीन, कभी कालबीना डांस, कभी कठपुतली डांस, साथ ही में अलग अलग तरह के डांस होते थे। ठीक है, हाँ हाँ। ये सिक्योरिटी रूम्स। अच्छा, यहाँ पे बॉडीगार्ड्स रहते थे। ऊपर साइड कलर दिख रहा है, वेजिटेबल बैंगन को सूखा कर सड़ा कलर बनता है ये। यहाँ के आदिवासी लोग बनाते हैं इस कलर को, इससे फिर हाथ की कला बनती है, जैसे साड़ीज बनती है उसमें ये कलर यूज किया जाता है, कोई भी जाता नहीं। आइए, আতা গাছ বা সীতাফল, এই চতুর্দিকে গাছগুলো দেখছেন সবই সীতাফলের গাছ বা আতা গাছ। এইখান থেকে এটা হয়, এই আতা গাছের বীজ দিয়ে শুকিয়ে এক ধরনের শাড়িও হয়, ফাইবার বার করে। ये शिव टेम्पल था, আর এটা একটা পুরনো শিব মন্দির ছিল। उन्होंने पूरा तोड़ दिया ऊपर से। आप ये वीडियो बना के किस में डालेंगे? यूट्यूब में। এই সীতাফলের গাছ পুরনো, এত में देखेंगे। এত সুন্দর এই মহলটা বা চিত্তোড়গড়, যে অনেকেই বলে চিত্তোড়ে দেখবার কি আছে, যদি দেখতে হয় চিত্তোড়ই দেখতে হবে। বাকি সব জায়গায় সোনা দানা অনেক কিছু দেখতে পাবেন, এখানে দেখতে পাবেন ইতিহাস। সীতাফল দেখতে দেখতে আমরা ইতিহাসে পৌঁছে গেছি সুরজপুর, যেটা মেন গেট, যেখান থেকে আলাউদ্দিন খিলজি আক্রমণ করেছিল। এই না, सब चीजें दिखाएंगे आपको जब मजा आएगा। ये बैटल फील्ड है, युद्ध का मैदान सामने, जहाँ तक उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जितना भी दिख रहा है पूरा बैटल फील्ड है। यही राजा महाराजा के बीच में भी लड़ा जाता है। राजपूत लोग सूर्य उदय होता है, इधर इधर ही खड़े रहने का, पहले सुनने का, सूर्य उदय होता था, युद्ध प्रारंभ होता था, सूर्यास्त के बाद में रुक जाता था। यहाँ से गर्म तेल, गर्म पानी, बड़े बड़े पत्थर फेंकर किले की रक्षा की जाती थी। 7 गोट इधर की साइड में बने हुए जो आक्रमण के अंदर तोड़ दिए गए। सन 1500 के बाद में उधर के साथ दरवाजे खोल दिए गए, तो एंट्री एक्सिट उधर हो गया। अभी रात के समय दरवाजे बंद होता है, क्योंकि जंगली जानवर ऊपर चला करते चलता है, पूरा जंगल ही रहता है। कैसे क्या क्या जानवर यहाँ पे है? वो लेपर्ड्स है, टाइगर्स है, वो सारे है जानवर है। तो इस तरह से ये किले का मुख्य द्वार माना जाता है। ये बैटल फील्ड बना हुआ, पहाड़ियाँ दिख रही है, अरावली रेंज है, दिल्ली से शुरू होती है, माउंट तक खत्म होती है। इन पहाड़ियों की सबसे बड़ी खासियत है ऊपर से फ्लैट होती है, तो किले बनाना इस पे आसान रहता था। तो ये विंध्याचल पर्वत और अरावली का मिक्स है। विंध्याचल पर्वत इससे आगे जाके शुरू हो जाती है, जो मध्य प्रदेश की तरफ चली जाती है, और ये जो पहाड़ियाँ है अरावली रेंज, लास्ट माउंट आबू गुरु शिखर, गुरु शिखर तक इसका एंड होता है। वो सबसे बड़ी ऊंची जो पहाड़ी है वो गुरु शिखर ही है। अभी फिलहाल इसमें हब्स होता है, जड़ी बूटियाँ 22 प्रकार की हब्स होती है, जिसमें अश्वगंधा, सलाकी, आमी, हल्दी, आंवला, चुकंदर, शहतूत का पत्तों पर रस्म का पालन किया जाता है। ये पूरा खेती यहाँ के ट्राइबल लोग करते हैं। सामने मकान दिख रहा है आपको, ये ट्राइबल लोग, इसी के अंदर विडोज होती है, हैंडीकेप बच्चे होते हैं, अनाथ लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उन्हीं की बड़ी फैक्ट्री बना दी थी। बड़ी फैक्ट्री उधर जो फैक्ट्री है, उसी फैक्ट्री में मैंने बताया चित्तौड़गढ़ में 3 चीज बना दी जो काफी फेमस होती है। एक तो आपको बताया रानी पत्नी का साड़ी बनता है सीताफल के धागे से, कस्ट नेपाल साड़ीज। उस साड़ी की सबसे बड़ी खासियत होती है उसमें सामने से गुलाब का महक आता है, फ्रेगनेंस आता है, तो गुलाब का साड़ी देखने को मिलता है। सेकंड चीज ऐसा बनाया, इसको दिल्ली के प्रगति मैदान के अंदर राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया। दिल्ली का प्रगति मैदान है ना, उसमें अवार्ड दिया गया। उसी के अंदर राजा महाराजा की तरफ में जड़ी बूटी निकलती थी, वो जड़ी बूटियाँ ऑस्ट्रेलिया की बेड़ आती मेरी लोग फूल, उसके बाल दोनों को मिक्स करने के बाद में यहाँ पर एक आयुर्वेदिक पेन किलर मेडिसिन रजाई बनाई गई, मेडिकेटेड रजाई, जिसको घुटनों का दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है, मसल्स पेन होता है, ये खराटे आते हैं, कम उम्र मोटापा आता है, उसलिए गुणकारी मानी जाती है। नॉर्मल लोग भी उसको यूज कर सकते हैं। उसमें भी अलग अलग तरह की डिजाइन बनाई जाती है। जो आपने उदयपुर का सिटी प्लेस में देखा होगा, उसका रेट काफी ज्यादा होगा। यहाँ पे बनता है तो देखने को मिलता है, काफी सस्ते रेट में देखने को मिलता है। इसके अलावा नहीं लेना कोई जरूरी नहीं, देख के जा सकते हैं इन चीजों को कितना फेमस होता है। थर्ड चीज, वेदांता ग्रुप का सबसे बड़ा माइंस है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, तो काफी मात्रा में जिंक सिल्वर निकलता है यहाँ पर।
जिंक सिल्वर से यहाँ पर जिंक सिल्वर का अलॉय करने के बाद में जिंक सिल्वर के बर्तन बनते हैं जो कभी काले खराब नहीं होते। इसमें कप सेट, ग्लास सेट, पूजा की थाली, आरती की थाली की सब बनाई जाती है। उसी मीना काम की चूड़ी, थेवा कला, चूड़िया, बैंगल्स बनाए जाते हैं जो फेमस होता है। अभी आपका सेकंड और लास्ट पॉइंट होगा, उसी के अंदर टिकट से इन चीजों को विजिट कर सकते हैं किस तरह से बनता है। और ये पैसा किसी की जेब में नहीं जाता है। इन्हीं तरह से अंकल की तरह तो बेटे हैंडीकैप लोग होते हैं, अनाथ लोग होते हैं, उन्हीं की जेब में पैसा आता है। ये उन्हीं की तरफ से मुहिम चलाई गई, रणा पूंजा संस्थान, उसी संस्थान के थ्रू ये काम होता है। जैसे इस किले का टिकट जो है ना वो 40 रुपीज टिकट एक जने का, 40 रुपए, जिसमें 35 रुपए तो गवर्नमेंट को जाता है और 5 रुपए इनकी जेब में जाता है। अच्छा, আলাউদ্দিন খিলজি এই পথ দিয়ে উঠেছিল এরকম এরকম নাচ করতে করতে। কি যেন নাচতে ছিল, কি জানি ঢিকচাক ঢিকচাক করে, আর এখান দিয়ে ঢুকেছিল। এই গেট দিয়ে ঢোকার একটা অসুবিধা ছিল, এটা মোটা কাঠের গেট, আর দেখবেন হাতিতে এসে ভাঙতে পারবে না, কত বড় বড় শুল লাগানো হয়। এইখান থেকে আলাউদ্দিন খিলজি ঢুকতে অনেক কষ্ট হয়েছিল, এইটা গেটটা ভাঙতে পারেনি, ওরা এই দেয়ালগুলো পরে ভেঙে দিয়েছিল। এই গেটগুলো, নিচের গেটগুলো যেগুলো দেখছেন এগুলো সব ভেঙে দিয়েছিল, ভেঙে ঢুকতে হয়েছিল, এমনিতে ঢুকতে পারেনি। 3 বার আক্রমণ হয়েছিল চিত্তৌড়গড়, একবার আলাউদ্দিন খিলজি, একবার আহমদ শাহ আবদালি, আর একবার আকবর। উদয়পুর থেকে যে পরিবারের সাথে আমরা চিত্তরে এসেছিলাম বেড়াতে, সেই পরিবারের ছবি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম, গাইডের ছবিও শেয়ার করলাম। গাইডের তো পুরো ভিডিওতে গাইডকে দেখেছোই, তার ফোন নাম্বারও আমি দিয়ে দিয়েছি। তোমাদের যদি ভালো লাগে, তোমরা যদি চিত্তর বেড়াতে আসো, ওনার সাথে যোগাযোগ করে নিও। আর এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো, ভালো লাগলে মতামত দিয়ে জানিও, শেয়ার করে দিও তোমাদের বন্ধুদের সাথে। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তবে সাবস্ক্রাইব করে আমার বন্ধু হয়ে যেও, আর তাতে বেল আইকনটা ক্লিক করে তাতে অল অপশনটা ক্লিক করে দিও, আর আমার বন্ধু হয়ে যেও কিন্তু। আর বাকি রাজস্থানের ভিডিওগুলো দেখছো তো, আমি আরও রাজস্থানের ভিডিও নিয়ে আসবো, সেগুলোর জন্য প্লিজ ওয়েট।